friends, I am your host Huzan and you are watching your favorite show WhatsApp TV। तो चलिए शुरू करते हैं आज का WhatsApp एपिसोड जिसमें है ढेर सारी मस्ती। जुनून में मौनी शूटिंग के ड्रेस और मेकअप से है परेशान। इस गर्मी में शूट करना उनके लिए है एक टफ जॉब। तो चलिए देखते हैं गर्मी से रिलीफ पाने के लिए क्या करती है मौनी। To begin with, I have lots of नारियल पानी, at least one नारियल पानी in the morning. कॉमन बात है, सब बोलते रहते पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, बट एक्चुअल में लोग करते नहीं हैं ऐसा. So I would just like to want everybody to have lots and lots of water. Also, because I have a derm friend, I know that sunscreens are very important. So whether or not अगर आप काले हो रहे हैं, that's okay. Sunscreen लगाने के बाद भी we all get tanned like very badly. But it really protects your skin and skin layer, so you must use a sunscreen. Well, जब काम कर रही होती हूँ तो शूट ही करती हूँ. But otherwise, if I have a day off, then I guess with one or two of my girlfriends, I'd like to go for a spa and swimming and again have lots and lots of lemon water. मैंगोज़ थैंकफुली मुझे इतना बुरा इफेक्ट नहीं करता क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो मैंगोज़ खाते हैं और उनके पिंपल्स ब्रेकआउट हो जाते हैं. बट फॉर मी आई नीड 2 मैंगोज़ एवरी डे. ऑल्सो कॉटन बिकम्स माई फेवरेट, सो आई वेयर लाइक lots and lots of cotton stuff. And what else? I guess one नींबू पानी, a good book, some really cool Indian classical music and water somewhere around water, so it's really nice. Yeah, that will be my ideal summer. हम लोग एक्चुअली सिर्फ मेरा समर हॉलीडे नहीं होता था, मम्मी पापा का भी समर हॉलीडे होता था because both of them are working and you know my father usually had to take छुट्टी because ऑफिस में इतनी वेकेशंस मिलते नहीं. बट हम लोग मैंने बहुत इंडिया टूरिंग की उनके साथ. एवरी ईयर इन समर हॉलीडे वी जस्ट टेक ऑफ फॉर 2 months सम प्लेस और द अदर बिकॉज नानी बाड़ी और यू नो दादी का घर दे ऑल वेरी क्लोज बाय एंड ऑल्सो दैट वी हैड अ हाउस इन द विलेज, सो वी एम विलेज गर्ल्स यूज्ड टू गो विजिट द विलेज समटाइम्स. पॉन्ड में नहाना एंड पूरे आम के बगीचे से वहीं आम तोड़ के वहीं छिलके वहीं mustard and you know used to put mustard and different spices and namak and you eat it there and it's a lot of fun. Like early in the morning there's this saag called bothua which you find in sarson ke khet. Okay. So we used to go there and pluck those and it's much fun. बहुत मिस करती हूँ, स्पेशली जो बहुत weird और absurd बात है is that my school and my college feels like another lifetime. And Bombay is like the third one. It's like a third birth. So yeah, I miss it very much. But ठीक है. First of all, I would like to thank all my fans who've been supporting me through and through. And I get all your mails and messages time and again. Thank you very much. Watching Junoon, please keep watching it. And secondly, summers are here, so I get into the water. Have lots and lots of fun. All those people who are having summer holidays, please have a blast because as soon as you get home, you're going to be at your books and with your books the whole year ahead. And rest of them, whoever is going for a holiday, please take me along because I am really overworked. And so it's just nothing. Have fun, enjoy life, be happy. Thank you. हमने बहुत दिनों से किसी स्टार के घर की सैर नहीं करवाई, तो चलिए हम आपको मिलाते हैं गौरव खन्ना से और दिखाते हैं उनका आशियाना. हम आज आपको लाए हैं उस सेलिब्रिटी से मिलाने जिसे आप अपने बहुत सारे फेमस शोज में देख चुके हैं, जैसे कि लव ने मिला दी जोड़ी, ये प्यार न होगा कम, दिल से दिया वचन और लेटेस्ट में ब्याह हमारी बहू का. जी हाँ, आपका गेस बिल्कुल करेक्ट है. हम गौरव खन्ना की बात कर रहे हैं. हम आज लाए हैं आपको गौरव खन्ना से मिलवाने उनके नए घर में. तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गो. हाँ जी, हम इंडिया फोरम से गौरव पहचाना नहीं? इंडिया फोरम्स नाम सुना है.
हाँ, इंडिया फोरम्स, मैं टीवी क्या करता था। करेक्ट। आइए आप लोग आइए। अरे लेकिन आप लोग सबका अंदर कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे कहाँ आ रहे हैं प्लीज़? कहाँ? आपने इनवाइट किया था, भूल गए गौरव? हाँ, मैंने अपने घर पे इनवाइट किया था, आप तो यहाँ किसी सेट पे आ गए हैं। ये मेरा घर थोड़ी ना है ये आपका ही घर है, आपने हमें इसी जगह पे बुलाया था, यही एड्रेस दिया था। क्या करूँ, एज हो रही है ना, मेरी याददाश्त जा रही है। खड़े क्यों आप लोग? प्लीज़ बैठिए प्लीज़। इंडिया फोरम्स याद आ गया मेरे को, सब याद आ गया। मुझे सन 88 का वो मैच भी याद है जब मैंने 3 गोल मारे थे। बैठिए। अब तो आपको पता चल ही गया है कि ये मेरा घर है, तो बताइए मैं क्या पेश कर सकता हूँ आपके लिए। गौरव, आपके फैंस आपसे बहुत दिनों से मिलना चाहते थे, तो हमने सोचा क्यों ना आपको कांटेक्ट किया जाए और उनकी इच्छा पूरी की जाए, इसीलिए हम आज यहाँ आ गए हैं। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं मजाक कर रहा था बाहर कि इंडिया फोरम्स को नहीं जानता। इनफैक्ट इंडिया फोरम्स ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे अभी तक मेरे टीवी शो ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो गया है, पर मैं जाता रहता हूँ इंडिया फोरम्स की साइट पे और देखता रहता हूँ कि मेरे जो बाकी दोस्त हैं कैसा काम कर रहे हैं, आप लोगों को उनका काम कैसा लग रहा है। सो आई वाज जस्ट किडिंग, आई वाज प्लेइंग, क्योंकि तो मैं चाहता था कि थोड़ा इंटरैक्टिव हो, थोड़ा फ़नी ओपनिंग हो। सो इसलिए मैंने ऐसा कहा। एंड यू पीपल आर ऑलवेज वेलकम टू माई हाउस। एंड मुझे लगता है ये घर आप ही लोगों की वजह से है, आप लोगों की प्यार की वजह से है। तो गौरव, आप ये नया घर अपने दर्शकों को नहीं दिखाना चाहेंगे, अपने फैंस को नहीं दिखाना चाहेंगे जो इतने बेताब है आपका ये नया घर देखने के लिए? मुझे आज तक एक बात नहीं समझ में आती कि मेरे कौन है फैंस। मुझे तो ये नहीं पता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है जब जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके काम को लोग पसंद करते हैं, उनके फैंस होते हैं। और मैं हमेशा इसी बात को मेंटेन करता हूँ कि मेरे कोई फैंस नहीं है, बट दे आर पीपल हु अप्रिशिएट माई वर्क। तो अब घर पे तो मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं है कि मैं उनको दिखाऊं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि एक बैचलर का अनटाइडी हाउस देखना तो मैं दिखा सकता हूँ। अब उससे ज़्यादा तो मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता। गौरव, आपको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आपके फैंस नहीं है। आप इंडिया फोरम्स की वेबसाइट चेक कीजिए, आपको बहुत सारे फैंस मिलेंगे आपके जो आपसे बहुत दिनों से मिलना चाहते थे और उसी रिक्वेस्ट पे हम आज यहाँ आए हैं। अच्छा वो आपने ये बोला, मुझे लगा आप कह रही हैं आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप बैचलर हैं। मैं डर गया था एक सेकंड के लिए। जहाँ तक फैंस की बात है, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि आई कीप रीडिंग व्हाट दे राइट, एंड मेरे को हमेशा ये लगता है, आई फाइंड इट टफ टू से दैट दे आर माई फैंस, बिकॉज फैंस कहने के लेवल पे आई हैव नॉट रीच्ड येट, एंड आई अंडरस्टैंड एंड आई बिलीव दैट देयर आर आर्टिस्ट एंड देयर आर एक्टर्स हु हैव रीच्ड दैट पेडेस्टल वेयर दे कैन कॉल पीपल देयर फैंस। मैं तो टीवी करता हूँ एंड टीवी इज़ लाइक अ जॉब, एंड वो भी थोड़ी बहुत मिलती है आजकल, काम तो ज़्यादा मिलता नहीं है। सो आई थिंक दे आर पीपल हु अप्रिशिएट माई वर्क, सो आई नो दे आर लॉट मैनी पीपल हु डू दैट। तो फैंस का वर्ड बोलने के बजाय उनको मैं अपना फ्रेंड्स बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे अक्सर फ्रेंड्स भी होते हैं जो उनको मेरा काम अच्छा लगता है, कहीं को नहीं लगता है। तो आई होप कि आपको मेरा आने वाला काम जब कभी भी मिलेगा अच्छा लगेगा। सो अंटिल देन मैं आपको अपने बैचलर पैड की एक जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया, साइट सीइंग तो नहीं बोलूँगा। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि जब आप टीवी नहीं कर रहे होते आप क्या कर रहे होते हैं, तो मैं यहाँ सोफे बैठा होता हूँ, टीवी देख रहा होता हूँ। आजकल IPL का सीज़न है तो IPL देखता हूँ, मेरे फ्रेंड्स आते हैं, और क्योंकि मैं ये बोलूँगा कि आई एम दी ओनली सिंगल गाय ऑन टेलीविजन राइट नाउ, सो आई कैन ईज़िली प्रोक्लेम कि ये मेरा बैचलर पैड है, जहाँ पे सारे मेरे दोस्त आते हैं और कभी भी आते हैं और कुछ भी करते हैं। कई बार तो मैं नहीं भी होता तो मुझे शौक लगता है घर आके, अबे ये कब आया, तो ऐसा भी होता है कई बार। तो उन लोगों से बचा फिरा के जितना घर मैं साफ रख सकता हूँ उतना रखता हूँ। तो चलिए बातें कम करते हैं, आपको दिखाते हैं। आइए मैं आपको अपना हॉल दिखाता हूँ, जिसकी थोड़ी भनक आपको मेरे पहले इंटरव्यूज़ में भी लग गई होगी और आइडिया लग गया होगा। बॉम्बे है, बहुत बड़े घर नहीं है, तो मैं आपको यहीं से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि बाकी दरवाजे खुलूँगा तो घर ख़त्म हो जाता है। आइए ये मेरा छोटा सा हॉल है, एंड यहाँ पे मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ मज़ा करता हूँ, टीवी देखता हूँ। मेरा टीवी देखने का बहुत शौक़ है, तो ये मेरा पूरा सिस्टम है, होम थिएटर सिस्टम है मेरा, हाई एंड वर्जन। एंड मेरी बैल्कनी है इधर, जो बॉम्बे में बहुत कम देखने को मिलती है। वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई आई बॉट दिस प्लेस वाज क्योंकि यहाँ पे जो बैल्कनीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं कंपैरेटिवली, और यहाँ से पूरा बॉम्बे दिखता है। अभी क्योंकि रात है इसलिए थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन मॉर्निंग में सनराइज़ होता है और बॉम्बे में पहाड़ जो हैं वो भी दिखते हैं यहाँ सामने, तो काफ़ी अच्छा लगता है। कई बार मेरे किसी शो में भी पहाड़ दिखा दिए थे। बुक्स पढ़ने की अच्छी आदत मेरे को नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है मैं और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाऊँगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ता हूँ। ये मेरी डाइनिंग टेबल है,
जहाँ पे हम लोग एक्चुअली कहने के लिए डाइनिंग टेबल है, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे बॉम्बे में कोई बैठ के खाना खाता नहीं है। एंड ये सिर्फ जब मेरे मॉम डैड आते हैं तो हमको थोड़ा और डिसिप्लिन होना पड़ता है, तो मैट वैट रख के एंड वी हैव टू ईट प्रॉपर्ली। तो ये उस चक्कर में ये आप देख रहे होंगे एक बहुत ही मतलब ड्रॉर नहीं, पूरी चीज़ आपको देख के कुछ याद आएगा कि ये सब क्या है। मैंने बनवा तो लिया है, बट आई डोंट relish ड्रिंकिंग मच, बट बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ गुड होस्ट एंड आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम द इंडस्ट्री वेयर पीपल लव टू कम टू दिस सेक्शन ऑफ द हाउस। सो ये मेरे दोस्तों के लिए है, और बस ऐसे ही। मैं तो इसमें बूस्ट और बॉर्नवीटा रखता हूँ, मैं ज़्यादा आई डोंट टेक ऑल दैट। वो मेरी छोटी सी घड़ी है जिसकी वजह से मैं कभी शूट पे लेट नहीं होता। और ये जो दीवार है ना, ये मैंने बहुत कोशिश की, पर इसका कलर ऐसे ही था। मैंने कोशिश की कि इसको वाइट कर दूं, लेकिन पता नहीं मेरे लक में थी कि ये दीवार ऐसी की ऐसी मुझे मिल गई और मैंने चेंज नहीं की। एक्चुअली ये वॉलपेपर है 3D वॉलपेपर, जो मैंने बहुत ढूंढ के लगाया बिकॉज आई लाइक इट। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। मुझे खाने का बहुत शौक है, मैं नॉर्थ से हूँ तो बिना खाए मैं रह नहीं सकता। तो ये मेरा किचन है जहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं एंड मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स लव द फूड। काफ़ी लोग जो जिनको मैं बोलूँगा मेरे फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ में मेरे मैन फ्राइडे को मिले होंगे, जिसका नाम दिलीप है, वो छुप गया है शर्मा के। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं बॉम्बे में हूँ, बिकॉज खाना बहुत अच्छा बनाता है और मम्मी ने काफ़ी अच्छा खाना इसको सिखाया है, तो इसलिए मेरे को बड़ा एट होम फील होता है। मैं बचपन से, मुझे लोग कहते थे कि बातें बहुत बनाता है, लेकिन यहाँ आके मैंने थोड़ी खाना भी बनाना सीख लिया। ये मेरा सेकंड बेडरूम है घर का, जो मेरा गेस्ट रूम टाइप है। अंदर आ सकते हैं आप लोग, कोई नहीं अंदर। तो ये एक रूम है जहाँ पे अक्सर जब मॉम डैड आते हैं तो उन लोगों के लिए हो जाता है। आप इधर आके देखेंगे तो यहाँ भी एक बैल्कनी है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। दिस इज़ अ बिगर बैल्कनी। आप किसी भी साइड नज़र घुमाइए, आपको बॉम्बे की पूरा लैंडस्केपिंग दिखती है और पूरा सिटी लाइफ दिखती है। Come have a look to the countdown and find out top 5 intimate scene of the TV world. इस समर में किसी ने हमें सैलेड बनाना सिखाया तो किसी ने छाछ, पर हमारी आदा खान हमें दिखाएगी कि कैसे बनाते हैं क्रंची स्लश। हेलो, मैं हूँ अदा खान, आप सबकी अमृत। और जैसे कि आप जानते हो कि गर्मियाँ बहुत 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 ज़्यादा बढ़ गई है, जीना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे सीज़न में अपने आप को ठंडा कैसे रखा जाए? सबसे इजी, मैं तो खाती हूँ चोको स्लश। यस, अब मैं आपको बताऊँगी इसकी रेसिपी। मेरे पास कुछ आइसक्रीम्स हैं जो डिफरेंट फ्लेवर की है, एंड उसके अंदर मैं मिलाऊंगी बिस्किट्स। इंटरेस्टिंग? तो चलो शुरू करते हैं। आइसक्रीम के अंदर तो मिल गया है सरप्राइज ऑफ ओरियो, लेकिन इसको थोड़ा हम ऊपर से भी सजाएंगे। इसका नाम वैसे मैंने चोको स्लश से चेंज करके कुछ और नाम रखा है। इट इज़ कॉल्ड क्रंची स्लश। ये हो गया है हमारा वनीला स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के साथ ओरियो बिस्किट्स। तो ये हो गया क्रंची स्लश। और आप अगर समर्स में ठंडा ठंडा कूल होना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे खाइए। और अगर आप वेट कॉन्शियस है तो प्लीज़ इसे मत खाइए, बिकॉज़ मैं जानती हूँ कि पतला होना कितना डिफ़िकल्ट होता है लाइफ में। लेकिन अब मैं हो चुकी हूँ तो मैं डेफिनेटली इसकी बाइट सबसे पहले आपको चखाऊँगी, लीजिए, और उसके बाद मैं खुद खाऊँगी। सही कहा जाता है कि जो सबसे फैटनिंग चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होती है, और यही हमने सबसे ज़्यादा टेम्प्ट करती है। तो चलो आज के लिए चीटिंग अलाउड। तो मैं अपने आप को ठंडा करने जा रही हूँ, आप भी जाइए।
With this, it's a wrap. I hope you enjoyed our today's episode. So don't forget to send your comments and suggestions at whatsupptv@india-forums.com. Till then, take care and goodbye.